ایک بہت بڑے سیاسی رہنما نے کہا تھا کہ جنگ جیسا سنجیدہ مسئلہ وہ جرنیلوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جنگ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے اور یہ جرنیلوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مذاکرات جرنیلوں کے بس کی بات ہوتی ہے لڑنا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں یالٹا میں، وہ پورے مذاکرات یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ اس میں کون شریک ہوتا ہے؟ اس میں شریک ہوتے ہیں جوزف اسٹالن، جن کا دایاں ہاتھ سن ہوتا ہے، شل ہوتا ہے۔ اس میں شریک ہوتے ہیں بہت بوڑھے سر ونسٹن چرچل، برطانیہ کے وزیر اعظم۔ اس میں شریک ہوتے ہیں بہت بیمار امریکی صدر روزویلٹ۔ لیکن وہاں پہ آپ کو کوئی وردی والا نظر نہیں آئے گا، کوئی جرنیل نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، ان کے اے ڈی سی، چائے پلانے والے، کھانا کھلانے والے، وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ تینوں بندے بیمار تھے۔ آپ آج میری فرمائش پہ یوٹیوب پہ یالٹا کے مذاکرات دیکھیں، بڑا خوبصورت جزیرہ ہے، وہاں پہ مذاکرات ہوئے تھے۔ اب اس سینیریو میں آپ نے سننا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں ان ایف اے پاس ڈفرز کو کب عقل آئے گی، اگر آئی بھی تو یہ بھی شرط ہے۔ قوم پہ ان کا بھید کھل چکا ہے۔ وہ دن گئے جب یہ غزوہ ہند کے افسانوں میں چین و توران میں گھوڑے دوڑایا کرتے تھے، نسیم حجازی کے ناولوں کے ہیرو بنا کرتے تھے، قوم کے محافظ، ملکی خود مختاری اور آزادی کی علامت بنا کرتے تھے۔ اب قوم ان کو چوروں کے محافظ، یہودیوں کے پٹھو اور مغرب کے غلام میر جعفروں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی۔ زید حامد مارکا کہانیوں پہ ہنسی آتی ہے۔ اب کوئی عزت نہیں ہے ان کی، محض بندوق کے زور پہ قوم کو جبرن غلام بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن اب بھی ان کا زید حامدانہ خمار ہی نہیں اتر رہا۔ وہ لال ٹوپی والا دجال زید حامد ابھی تک اسی غزوہ ہند کے مجاہد بن کر خیالی گھوڑوں کی سواری میں مصروف ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ ملک و قوم ان کے بزدلانہ، خود غرضانہ، کرپٹ اور ذاتی اقتدار کی ہوس پہ مبنی فیصلوں کی وجہ سے ایک ایسی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے جو شروع ہو گئی ہے۔ جو شروع ہو گئی تو تباہی ہی تباہی ہے۔ واحد عقل مندانہ حل یہ ہے کہ اس موڑ کی خطرناکی کا صاف لفظوں میں اقرار کر کے قوم سے ساتھ دینے کی اپیل کی جائے کہ اب ہم پھنس گئے ہیں، قوم ہمارا ساتھ دے۔ تنقید ہوگی ان کی غلطیوں پہ، لیکن صبر سے برداشت کر کے مشکل سے نکلنے کے لیے ساتھ مانگا جائے قوم کا۔ لیکن اب بھی اس خبت عظمت کا بخار نہیں اتر رہا۔ جھوٹ بول کر قوم کو بے وقوف بنانے کی عادت جان نہیں چھوڑ رہی۔ ایک زید حامد فیل ہو گیا تو نئے زید حامد میدان میں اتارے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ شیڈول 4 کے دہشت گردوں سے پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں اپنے حق میں۔ حالانکہ حقیقت سب کو پتہ ہے، جنرل عاصم منیر اپنی ناجائز حکومت کو دوام بخشنے کے لالچ میں محمد بن سلمان سے دفاعی معاہدہ بغیر سوچے سمجھے سائن کر کے آ گئے تھے۔ وہ ایک کمزور شخصیت کے مالک ہیں جو دن میں خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ انہیں لالچ تھا کہ محمد بن سلمان چونکہ ٹرمپ کا دوست ہے تو اس کی سفارش کرے گا۔ سارا چکر یہ تھا۔ جنرل عاصم منیر جو محمد بن سلمان کی بغلوں میں گھسے رہے، اب ایک نیا خادم حرمین شریفین سعودیہ پہنچ گیا ہے۔ وہ ہے وہ یوکرین کا مسخرہ ولادیمیر زیلنسکی۔ اب یہ حافظ حرمین شریفین ہوگا۔ یہ ڈرون دے رہا ہے سعودیہ کو، وہ وہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ محمد بن سلمان کو
पाकिस्तान का एटम बम नजर आ रहा है जो किसी फौजी ने बनाया ही नहीं था। उसे अमरीकियों के जाने का बुखार चढ़ा हुआ है कि अमरीकी चले जाएंगे। वो चाहता है कि अमरीकी जाते जाते ईरान को पक्का रगड़ा लगा कर निकले और ईरान को खत्म करके निकलें, और अमरीकियों के पास अपने फौजी मरवाने के लिए दस्तयाब नहीं है। अब किस तरह जमीनी हमला करें? अमरीकी जो है ना ईरान पे अपने फौजी मरवाएंगे। जी, वाहिद फौज पाकिस्तान की नजर आती है जिसका चीफ अपने लालच में अंधा ब्लैंक चेक जैसा दिफाई मुआहदा लिख आया था, उसी पे सबकी नजर है। और फौज की जो है वो इंतहाई घबराई हुई है कि जंग करें तो मरते हैं, न करें तो मरते हैं। इस तनाजुर में हमने रो पीट कर ये मुज़ाकरात की सफारती राह निकालने की कोशिश की थी कि ऐसी तबाही से बच सकें। मुनासिब ये था कि अकल से काम लेते, ईमानदारी के साथ कौम को आने वाले खतरात से आगाह करते कि हर किस्म से खतरों से बचकर रास्ता निकाला जाए। लेकिन डफर्स क्या कर रहे हैं? पहले तकफीरी और शेड्यूल फोर्थ के मुल्ला किराए पे लेकर फिरका वारियत पे मबनी एंटी शिया बयानियां बनाने की कोशिश शुरू कर दी। कौन मानेगा? मुस्लिम तो एक तरफ, अब गैर मुस्लिम भी ईरान के हक में खड़े हैं। इजराइल, अमेरिका सबको साफ साफ इंसानियत, अमन के दुश्मन और जारे नजर आ रहे हैं। यूरोपीय अवाम एप्स्टीन माफिया को इल्जाम दे रही है और तुमने मौलवियों को एप्स्टीन, इजराइल और अमेरिका की सफाई देने पे लगा दिया है। इन तकफीरी मौलवियों को गालियां न पड़ेंगी तो और क्या होगा? अब अमेरिका तंग आकर मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है तो तुमने पॉलिसियों से जैद हामिदाना बयानियां बनवाना शुरू कर दिया कि अहे हमारी हां और ना में दुनिया के फैसले होंगे, हम सालिस बन गए हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, अब हम फैसला करेंगे। लख दी ए उई इस तरह बयानियां बनता है। अपनी औकात देखो, तुम ट्रंप के सामने जाती नौकर की तरह सर झुका के खुशामदाना बगैरती की हंसी हंस रहे होते हो और वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा होता है जैसे जिसे तुम तारीफ समझ रहे होते हो। अब तुम उस अमेरिका का फैसला करोगे सालिस बनकर, और फिर ये बयानियां जिम्मे लगा दिया उन बेचारे रिपोर्टर्स के जिन्हें जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 27 मार्च 2026 की तारीख है और दिन बड़ा खूबसूरत है, जुमा, जिसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की ईद करार दिया था, यानी जुमा है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपने अर्जियां डालनी है, आपने दरखास्तें डालनी है, अल्लाह पाक से बहुत कुछ जो है वो मांगना है। सबसे पहले जो है वो ताज़ा तरीन खबरें और वीलॉग, लेकिन उससे पहले एक वजाहत कर दूं। बहुत ज्यादा दोस्तों ने चैनल के बारे में पूछा और जो सबसे ज्यादा मजेदार जो है वो सवाल था वो ये था कि आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है। इमरान खान का हो गया है, वो भी न्यादी है 73 साल की उम्र में। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह 52 साल उम्र है। मुझे मार दे, मेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दे, मुझे फांसी लगा दे, मुझे जिंदा गाड़ दे, मेरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खातिर आप जमा रखें। मसला पता है क्या है? मसला ये है 2024 में जो है ना वो मैं तकरीबन 70% जो है ना वो ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंड मेरी जो स्पेशलिटी थी वो सिर्फ टीचिंग थी, जिससे मैंने ये सारा जो है ना वो ताम झाम चलाया रखा। लेकिन अब जो है
मैंने आपको सिंपल बताया था, हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी। इस दौरान मैं काफी सारा मकरूज हो गया, काफी सारा। अब वो मुझे डिप्रेशन होती है कि चैनल स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे नहीं है, और जो है ना वो हालांकि मेरे जो कर्ज खा है वो माशाल्लाह बड़े तावन वाले हैं, तो मैं कभी कभी घबरा जाता हूँ कि कोई ऐसा काम करूं कि उस कर्ज को वापस करने की जो है ना, आपको पता है कर्ज की क्या पोजीशन होती है। तो सिर्फ ये मामला है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड वाला ज़हन से भी निकाल दें कि मेरा कभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो सकता है। मैं तारीख की राइट साइड पे खड़ा हूं। मेरी तरह कोई भी ये नहीं कहता खुलेआम कि मैं इमरान का सपोर्टर हूं। कभी सुना है इमरान रियाज के मुंह से सुना है, साबिर शाकिर के मुंह से सुना है? शहबाज गिल तो पीटीआई में है ना, मैं तो पीटीआई में भी नहीं हूं। मैं वादे तौर पे कहता हूं कि मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, और मैंने ये भी आपको वादे तौर पे कहा, अपनी फैमिली समझ के अब भी कह रहा हूं कि आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, यानी और फाइनेंशियल करें, सॉलिड करें, तो हमारा और आपका राब्ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं इंसान हूं ना, तो वो कभी कभी कर्जे की मुद्दत बढ़ रही है ना, तो उससे घबरा जाता हूं। और मैंने आपको सिंपल जो है ना वो कि आप थोड़ा थोड़ा करके इतनी ज्यादा जो मेरी ऑडियंस है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और हमारा ये सिलसिला बहरहाल वो अपग्रेड वाला मामला नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। शुक्र है जो ईरान है ना वो पाकिस्तान नहीं है, यानी उसका ये भी तरीका है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को पूरा जो है वो वॉच करने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था कि हमारी एक वीडियो 15,000 व्यूज हर वीडियो लेना शुरू कर देती है, फिर सारा कुछ जो है वो इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह ठीक हो जाएगा। उस वक्त तक आप कोशिश करें कि हमें जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट करें। बहरहाल बेफिक्र रहें कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड होगा, ज्यादा से ज्यादा मार देंगे और क्या कर लेंगे। 500 जो ईरानी रियाल है ना, 500 ईरानी रियाल, गौर से सुनना है, 500 ईरानी रियाल 1 रुपए के बराबर है। कितने के? 1 रुपए के। अभी नहीं, अभी आगे सुने। 1 लाख ईरानी रियाल 21 रुपए के हैं, 21 रुपए के, अभी नहीं। 1 मिलियन ईरानी रियाल 221 रुपए के हैं पाकिस्तानी। यानी आप 221 रुपए ईरानियों को दें और वो आपको कितना देंगे? 1 मिलियन रियाल। ये वैसे किसी से मंगवा लें रखने के लिए निशानी के तौर पे। अच्छा, अब आप अंदाजा करें, ना बिजली महंगी हुई है, ना गैस महंगी हुई है, ना पेट्रोल की किल्लत जो है ना पैदा हुई है, ना कोई ग़िज़ाई अजनास जो है वो महंगे हुए हैं। बल्कि कल एक बहुत बड़े स्टोर की एक तस्वीर आई हुई थी, बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर था, उस पर बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था। बैनर में क्या था, यानी मैं लुत्फ आ गया देख के। बैनर पे लिखा था कि तमाम सौदा दस्तयाब है, ठीक है, पैसे नहीं है तो सारा सौदा ले जाएं, लेकिन पैसे जंग के बाद अदा करें, जंग के बाद। और फिर साथ एक वाक्य लिखा हुआ एक ईरानी का। एक ईरानी दुकानदार था, उसके पास एक बंदा आता है और वो उसके पास साइकिल खड़ी करता है। साइकिल कहता है मैं वापस आ रहा हूं, मेरी साइकिल खड़ी रहे। उनको ठीक है, वो बंदा चला गया। शाम हो गई, बंदा नहीं आया। दुकानदार ने जब दुकान बंद करने लगा ना, तो साइकिल को दुकान के अंदर खड़ा किया, दुकान बंद की, घर चला गया। अगले दिन सुबह सवेरे आया, साइकिल बाहर निकाली, वहीं खड़ी की, दुकान शुरू कर दी। रात हो गई, कोई नहीं आया, उसने साइकिल अंदर खड़ी की। 45 साल ये काम किया उसने, 45 साल। जरा पाकिस्तानी बन के सोचें, बंदा नहीं आया, दुकान वाला बंदा फोत हो गया, साइकिल वही। अब ईरान में इतना बड़ा मुजस्मा लगा हुआ है उस दुकान वाले का, और साथ साइकिल खड़ी है कि ये है अमानत, ये है अमानत, इसे कहते हैं अमानतदारी। वो कौम है, कौम है वो।
उस स्टोर वाले ने उस बैनर पे वो उस मुजस्मे की तस्वीर लगाई हुई है कि हम ये लोग हैं। पाकिस्तान में स्टोर लुट गए होते, लोग एक दूसरे के बाजू काट के खा गए होते, लोग एक दूसरे का भेजा निकाल के खा गए होते। ये भेड़ें, ये बकरियां, ये दरिंदे, सबसे पहले हुक्मरान। कल क्या होता है पीएसएल के मैच में, तमाशाई कोई नहीं है, रानी आती है, क्या बात है यार, पंजाब की पूरे लौ लश्कर के साथ अकेला बैठ के मैच देखती है और वो पैगाम देती है कि तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो, तुम लोग भेड़ बकरियां हो, मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, मैं दुल्ले गजरे वाले नी पोतियां। उधर कोई बचत नहीं है, 35 गाड़ियां लेके आती है, लोगों का दाखिला बंद कर दिया है। नसीम शाह ने ट्वीट भी किया है ना कि ये किस मुल्क की रानी है। रानी है क्योंकि जहाज का जो डेटा पब्लिक होता था ना गल्फ स्ट्रीम का, उस पर पाबंदी लग गई है, उस पर पाबंदी लग गई है कि अब पब्लिक नहीं होगा। ये जहाज कहां से उड़ता है, कहां जाता है, अब नहीं बताया जाएगा। ये अमेरिका को इमदाद भेज रहे हैं और जहाज पे फौजी भेज रहे हैं, अब डेटा ही सारा खत्म कर दिया गया है। साफियों को पता चल जाता जहाज लाहौर से उड़ा है, पिंडी पहुंचा है, पिंडी से कहां पहुंचा है, अब उन्होंने डेटे पे पाबंदी लगा दी है। ये लोग हैं। उधर वो 45 साल साइकिल बाहर खड़ी करता रहा ईरानी। ये कौमों का फर्क है, सिंपल इज दिस। अब अगला फर्क देखें, जयशंकर क्या कहता है। जयशंकर कहता है कि हम पाकिस्तानियों की तरह दलाल रियासत नहीं है, दलाल रियासत। कोई नहीं बोला, सांप सूंघ गया। कासिम खान ने कहा कि जीएसपी प्लस लेना है तो फिर शिक्कों पे अमल करें। मेरे बाप को 1000 दिन हो गए, न मुलाकात कराते हैं, न इलाज कराते हैं, न तारीखी लगती हैं, न जज गैरत करते हैं, उसके पीछे पड़ गए, मुंह से झाग। वो एक पंजाब की वजीर इत्तलात है, पता नहीं किस खानदान से ताल्लुक है, ये बहन के साथ और मां के साथ नाइट क्लबों में फिर रहा था। वो जिसका दादा दलाल था सबसे बड़ा, रफीक तारड़, जिसने सुप्रीम कोर्ट खरीदी थी क्वेटा जाके, ब्रीफ केस ले जाके, इतनी इतनी दाढ़ी, ये उसी की औलाद है। वो आ गया, उसके मुंह से झाग उड़ रही थी। जयशंकर को किसी ने जवाब नहीं दिया। अभी चले जाएं यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी चल जाए, ट्विटर पे पूरी वीडियो दस्ताब है जब वो कहता है कि वी आर नॉट दलाल स्टेट, दलाल दल्ले। जवाब दें। उन्होंने हमारे दरिया बंद किए, हम सांसें बंद कर देंगे, करें ना सांसें बंद। चुनाव पे डैम बन रहा है, सिर्फ आलिया हमजा को मर्दान की याद आती है गिरफ्तार करने पे, यहां बेल्ट याद आता है, यहां पे मर्दान की जागती है। आलिया हमजा को गिरफ्तार कर रहे हैं, 20 गाड़ियां आई गिरफ्तार करने आलिया हमजा को, और वो भी जो है ना वो मुखबरी हुई। जवाब दे जयशंकर को, DGISP आ रहे हैं, किस तरह सुहेल आफरीदी पे आंखों से अंगारे निकल रहे थे, एक खातून साहबी को आंखें मार रहे थे, 3 स्टार जनरल। तुम होते कौन हो, कहे ना जयशंकर को। वो कहता है दलाल रियासत है। करे ना तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस, करे ना तलाल चौधरी, क्योंकि वो तो इनके अंकल हैं, वो तो बगैर वीजों के जाती उमरा में आते हैं। जंदाल बगैर वीजे के मरी पहुंचता है, सज्जन जंदाल करे, सबको दलाल कह रहा है। मुझे बिठाएं टीवी में, मैं जवाब देता हूं जयशंकर को। जयशंकर की वालिदा, माजिदा, मोहतरम बहने, मैं सारे जयशंकर को बताऊं, बहुत बड़ा डिप्लोमेट है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा जयशंकर। लेकिन लैंग्वेज पे गौर करे। मुझे 5 मिनट टीवी पे बिठाएं, मैं जयशंकर को भी जवाब दूं, नरेंद्र मोदी को भी जवाब दूं, और जयशंकर को वहां तुन्नू जहां से जयशंकर निकला है। लेकिन उसके लिए फिर आपको पता है जान हथेली पे रखनी पड़ती है, आराम कुर्बान करने पड़ते हैं। इनके तो गद्दे
وہ جو ہے نا 4-4 فٹ کے اور 3-3 فٹ کے موٹے ہیں، جس میں بندہ دھنس جاتا ہے، یہ وہ گدے چھوڑ سکتے ہیں مکانوں کا؟ اس کو جواب نہیں دے رہے، قاسم خان پہ پل پڑے ہیں۔ مظہر عباس جیسا صحافی کہتا ہے کہ قاسم خان نے کوئی غلط بات نہیں کی، مظہر عباس جیسا۔ بی بی سی کہتا ہے کہ اس نے جی ایس پی پلس کا نام ہی نہیں لیا۔ ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ مکمل طور پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے قاسم خان کے حوالے سے، لیکن جے شنکر کو جو ہے وہ جواب نہیں دے رہے۔ آگے سنیں ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تحفے کا ذکر کیا تھا، تحفے کا، کہ جی وہ مجھے تحفہ ملنے والا ہے۔ وہ تحفہ سامنے آ گیا، 6 جہاز ہیں، اس نے بوٹس کا لفظ استعمال کیا ہے، ویری بگ بوٹس، تیل سے بھری ہوئی۔ جھنڈے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ پاکستان کے۔ اور تحفہ کس کو مل رہا ہے؟ امریکہ کو۔ وطن کی ہوائیں لان تان کرتی ہیں تم لوگوں کی غلامی پہ، تم لوگوں کے تلوے چاٹنے پہ، تم لوگوں کے بوٹ چاٹنے پہ، تم لوگوں کے سلوٹ کرنے پہ، تم لوگوں کے نوبل پرائز نامزد کرنے پہ، ایپسٹین زادوں کو، کہ وہ جہاز ان پہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ اپنے ملک میں کیا کر دیا ہے؟ 322 روپے لیٹر۔ اپنے ملک میں لاک ڈاؤن، تعلیم، بادل آئے سکول بند، ہوا چلے سکول بند، گرمی سکول بند، سردی سکول بند، سکول بند۔ کیوں سکول بند؟ پڑھے ہی نہ قوم، جرنیلوں کی پالیسی ہے، پڑھے ہی نہ۔ یہ میں 2 جماعتیں پڑھا ہوں نا، تو سوال کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ 2 جماعتیں پڑھا ہوا ہوں تو نہ مجھ پہ کالا جادو اثر کرتا ہے، نہ پیلا، نہ نیلا، نہ چٹا، نہ ساوا، کوئی جادو الحمدللہ سر نہیں کرے نا۔ اللہ سے لو لگا کے بیٹھا ہوں، اور اللہ کے بھروسے پر جو ہے نا یہ پاکستان میں بیٹھا ہوں۔ آپ لوگ سوال کرتے ہیں آپ کہاں سے پروگرام کرتے ہیں؟ پاکستان سے کرتا ہوں یار، کہاں سے پروگرام کرتا ہوں؟ آپ کو اور کتنی دفعہ صفائی دوں؟ وہ میرے 1-2 محترم ویور ہیں، میرے لالے ہیں، وہ میرے گھر آئے ہیں، مجھے مل کے گئے ہیں کہ میرا گھر کہاں پہ ہے، مل کے گئے ہیں مجھے۔ میں بار بار آپ کو کیا کہ میرا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا۔ اب میں اس چکر میں ہوں کہ پاسپورٹ جو ہے نا وہ بنواؤں، وہ بھی اس کے لیے کہ ذرا ملاقات کریں ادھر مکہ میں اور مدینہ میں، کوئی حال حوال اپنا بتائیں ان کو۔ آپ کو تو بتا کے تنگ آ گیا ہوں، ان کو بھی بتائیں اپنا حال حوال جا کے میں پاکستان میں ہوں۔ تو یہاں پہ یہ کر دیا، تعلیم کا بیڑا غرق۔ آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مئی میں چھٹیاں کر رہے ہیں اسکولوں کی، مئی سے ستمبر تک۔ اپنی ہر چیز وہیں پہ ہے، ہر چیز۔ آپ کو بتایا کہ رانی کال سٹیڈیم میں آئی ہیں، پتہ لگا ہے کہ رانی آئی ہے، پتہ لگا ہے۔ 35 گاڑیوں کا موٹر کیڈ، اور وہ گلف سٹریم جہاز معذرت 1 گھنٹے کا 18 لاکھ کا پیٹرول۔ میں نے تو آپ کو بتایا ہم کمین ہے، ہم نے ٹیکسوں کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے ٹیکسوں کے لیے کمانا ہے۔ نہ یہاں پہ ہسپتال ہے، نہ یہاں پہ وہ اتفاق ہوا، یعنی کہ جی دوست کی جو ہے نا وہ بیوی گر گئی ہے موٹر سائیکل سے، عید سے پہلے کی بات ہے۔ میں فوراً قریبی دوستوں میں فوراً راجہ بازار پہنچا۔ اللہ تو بہت بے نیاز ہے۔ وہاں پہ مجھے جانتے تھے، ایم ایس مجھے جانتے تھے، حالانکہ عورتوں کا وارڈ تھا، لیکن وہاں کسی کو کیا ٹھرک کی کیا پڑی ہوتی ہے حالت دیکھ کے۔ آپ اللہ پہ یقین کریں میرے سننے والوں، فرش پہ عورتیں، ایک بیڈ پہ 3 عورتیں، 3 ٹروما میں، ایک کے پیر ادھر، ایک کے پیر ادھر، تیسری کے پیر ان دونوں کے اوپر۔ ڈاکٹر جو ہے نا اس طرح تلاش کر کے ٹوٹیاں لگا رہا ہے اور انجیکشن۔ میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، یہ ملک کیوں بنا تھا؟ یہ آج قید اعظم آ کے دیکھ لے، 11 ارب کا مکھیہ منتری نے جہاز خرید لیا، 20 ارب کا
आर्मी चीफ ने जहाज खरीद लिया, एक बेड पे 3-3 औरतें। वो औरत तलाश करने में मुझे वक्त लगा, वो जो मेरी भाभी थी, कि वो किधर है। नीचे यानी देख देख के चलना पड़ रहा था कि किसी के ऊपर पैर ना आ जाए। मैं वहां पे 3 मिनट टोटल, मैंने 3 मिनट स्टे किया। भाभी के माथे पे हाथ रखा, दुआ दी, शुक्र है बेहतर थी, निकल आया वहां से, क्योंकि मेरा दिल इस किस्म का है। मैं वहां से निकल आया, बाहर आके बैठा रहा कि ये कैद आदम आ जाए, लामा इकबाल आ जाए, वो ये देखे, या इमरान खान आ जाए, वो ये देखे, ये मुल्क है, ये कौन लोग हैं जो ये मुल्क चला रहे हैं, और वो कौन लानती हैं जो 25 करोड़ यहां पे रह रहे हैं, वो कौन लोग हैं। बहरहाल चल रहा है सारा कुछ। तो इन्होंने अपने मुल्क में ये सारा कुछ करके, और कोई कह रहा है 6 जहाज, कोई कह रहा है 4 जहाज, अपना झंडा लगा के आबनाए हुर्मुज को पार करवाया, और तोहफा दिया किसको? ट्रंप को, एप्स्टीन ज़ादे को। यानी वो एक तबसरानिगार ने कहा कि एप्स्टीन स्कैंडल को दबाने के लिए जंग छेड़ी, और एप्स्टीन से ज्यादा जंग गले पड़ गई। अब जंग से किस तरह जान छुड़ाएं। और इन्होंने जो है ना, वो कभी कहते हैं 4 जहाज, कभी कहते हैं 6 जहाज तोहफे में दे दिए। इनको हवाएं लान तान न करें तो क्या करें। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं अपने इक्तदार के लिए। जयशंकर को जवाब देने वाला कोई नहीं है। वो कहता है दलाल रियासत है, ये दलाली कर रहे हैं। और दलाली में आपको पता है, कोयलों की दलाली में पहली शर्त यह है कि हाथ, मुंह, कपड़े काले होते हैं, और हमारे काले हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हमारा क्या तारुफ है, उसको किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अगली खबर जो है वो मुलाहिजा करेंगे। ये खबर आपने सुननी है, बड़ी इंटरेस्टेड। पाकिस्तान सऊदीया से तेल ले रहा है। सऊदीया से कितने में ले रहा है? कम अज कम $75 फी बैरल, और ज्यादा से ज्यादा $120 फी बैरल। रूस कितने का दे रहा है? रूस दे रहा है $70 फी बैरल। वो जो खान गया था, याद आया? खान गया था सस्ता लेने। रूस दे रहा है $70 फी बैरल। दोबारा सुने, सऊदीया और यूएई पाकिस्तान को दे रहे हैं 75 से 120। रूस दे रहा है $75 फी बैरल। और ईरान कितने का दे रहा है? ईरान दे रहा है $45 का फी बैरल। 45 का। इजाजत नहीं है। हम यूएई और सऊदीया से खरीद रहे हैं, हम यूएई और सऊदीया से खरीद रहे हैं, इजाजत नहीं है। ईरान से 45। यानी पाकिस्तान में पता है कितने का पेट्रोल मिलेगा? लेवी लगा के 70 से 75 रुपए फी लीटर। अगर, और ईरान का हल्का तेल, साफ तेल, इतनी ज्यादा रिफाइनरी की जरूरत नहीं है। यानी पूरी दुनिया में, आपको इस बात का पता है कि पूरी दुनिया के पेट्रोल में, चूंकि वो थिक होता है, उसमें ईरानी तेल मिलाया जाता है उसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए। हल्का और पतला ईरानी तेल वो दे रहे हैं $45 फी बैरल। इजाजत नहीं है। और रूस दे रहा है $70 फी बैरल। ये जो जंग लगी है ना, 20 दिन 21 दिन, $8 अरब कमा लिया रशिया ने। $8 अरब, $70 फी बैरल के हिसाब से $8 अरब कमा लिया रशिया ने। फिर तगड़ा हो गया है। और ये दे रहे हैं कौम को 311 का लीटर। अभी कह रहे हैं और महंगा होगा। यार इतनी, यानी एटमी मुल्क है जी, 7 लाख फौज है जी, फील्ड मार्शल है जी, 25 करोड़ लोग। मैं दुकान पे जाता हूं, मेरी मर्जी है, मैं जहां से केले खरीदूं,
मेरी मर्जी है मैं जहां से माल्टे खरीदूं, मेरी मर्जी है मैं जहां से कपड़ों को जोड़ा खरीदूं, आप मुझे फोर्स कर सकते हैं? पैसे मेरे, चॉइस मेरी, तो आप क्यों मुझे ये सामने पर, बिल्कुल सामने, यानी सऊदीया और यूएई 120, रशिया 70 से 75, ईरान 45 नहीं ले सकते। और आखिरी बात यह है कि कासिम खान से दरखास्त है कि वो जब भी आप खिताब करे तो उर्दू में करे, ट्वीट करे तो उर्दू में करे, क्योंकि नून लीग का और पीपल्स पार्टी का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। मैं वीलॉग करने से पहले ना 4-5 घंटे कोशिश करता हूं, ये कोशिश भी नहीं करते, जिसकी वजह से ये फिर झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। उम्मीद है कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। मैंने पूरा दिल खोल के आपके सामने रख दिया। सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला बेज़निल्लाह। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।